Dear brothers and sisters, प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, today we are going to meditate on Genesis 28 verse 15. आज के दिन हम उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय और 15 वचन से हम मनन करेंगे। Behold, I am with thee and will keep thee in all places. मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। Jacob is a well-known character in the Old Testament, याकूब पुराने नियम में एक माना जाना व्यक्ति है and he is famous for his deceitful nature. और वो तो धोखा देने में बहुत माहिर है He deceived his brother Esau, और अपना भाई ईसाऊ को धोखा दिया है and also he deceived his father Isaac. और अपना पिता इसहाक को भी वो धोखा दिया Also he deceived his father-in-law Laban. और उनके ससुर जी जो लाबान थे उसको भी वो धोखा दिया। Even before he was born, और उसके जन्म से पहले भी he tried to trip his brother Esau's foot when he was in his mother's womb. जब वो माँ के गर्भ में था अपना भाई जो ईसाऊ का उसका पैर पकड़कर वो खींच रहा था। So his struggle to become the firstborn, it started when he was in his mother's womb only. तो जो पहलौटा बनने का जो इच्छा उसमें थी वो तो माँ के गर्भ में से उसका शुरू हो गया था। Now after deceiving his brother and also father, अभी उसके भाई को और फिर पिता को भी वो धोखा देने के now बाद he is running away to his uncle's house. अब उसके मामा के घर वो जा रहा था On the way, the Lord appeared unto him. और मार्ग में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। So that today our meditation is on the same verse. तो आज के दिन हम इसी वचन पे हम मनन करेंगे। This is the promise given by God to Jacob at Bethel. परमेश्वर ने याकूब को बेतेल में ये वायदा किया था। See, this man is running away from his father's house. और ये मनुष्य अपने पिता के घर से वो भाग रहा था After deceiving his brother and stealing his birthright and blessings, he is running away. और अपने भाई को धोखा देने के बाद में और वो वहां से वो भाग रहा था। Oh, what a promise is this to a man who is almost doing deceits. देखिए ना, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा वो धोखा ही देता था तो परमेश्वर ने कैसे उसके साथ व्यवहार किया है। See what kind of promise he is giving. देखिए ना, वो कैसा वायदा करता है वो। See, to me, one of the most interesting characters in the Old Testament is Jacob. और पुराने नियम में मुझे बहुत पसंद एक व्यक्ति है, यही जो याकूब है। Yeah, he was a cheating and deceiving person. और वो तो धोखा देते रहता था He was a conniving and manipulating and supplanting man. और ये ऐसा है ना, सब उल्टा पुल्टा करने वाला गड़बड़ करता था और वो तो धोखा देता है हमेशा। Yet God loved this man so dearly. फिर भी परमेश्वर ने उसे बहुत ही प्रेम किया है। When I meditate his life, अब उसके जीवन पर जब हम अध्ययन करते हैं yeah, I can see my own picture in his life. और उसके जीवन में मैं अपने बारे में वो देख सकता हूँ। But what a love of the Lord Almighty. लेकिन हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कैसा अद्भुत प्रेम है। We are no way better than Jacob. हम तो याकूब से कुछ अच्छे नहीं है, Yet he loved us. फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। In fact, the life of Jacob is filled with marvelous lessons for us about God's dealings with human nature. वास्तव में परमेश्वर ने जो मानव जाति से व्यवहार करता है याकूब के जीवन से हम इस प्रकार के कई सबक को हम सीख सकते हैं। Here we see Jacob fleeing for his life from his older twin brother Esau. यहाँ पर याकूब ने जो अपना जुड़वा भाई ईसाऊ से वो भाग रहा था And Jacob has already outwitted Esau twice. अभी इससे पहले याकूब ने अपने भाई को 2 बार वो धोखा दिया है। First of all, पहली बार Jacob has tricked Esau out of his birthright by offering a pot of stew in exchange for his birthright. देखना, याकूब ने अपना भाई जो ईसाऊ को जो खाने के लिए कुछ ऐसा वो देते हुए और अपना जो ये जन्म जो हक है उसको छीनने की वो बहुत धोखेदार करता था। And secondly, और दूसरी बात, Jacob had stolen the patriarchal blessings from his father Isaac. A blessing actually belonged to Esau. याकूब अपने पिता इसहाक से जो आशीष वो ईसाऊ के लिए रखा गया था उसको उसने छीन लिया है। And he pretended to be Esau to trick his Isaac, his father, in his old age. और फिर उसका जो पिता इसहाक बुढ़ापे में था तो ऐसा धोखा दिया कि वो अपने आप को ईसाऊ जैसा वो बनकर आया था। Isaac was old and bedridden. इसहाक तो बहुत ही कमजोर हो गया और वो तो बहुत बुढ़ापे में है And his eyesight was failing. और इसकी दृष्टि नजर भी बहुत कमजोर हो So गई। when Esau learned that Jacob has stolen his blessing, जिस समय ईसाऊ ने ये जान लिया था कि याकूब ने
मेरे सारे आशीष को चुरा कर भाग रहा है। And he became very angry. और वो बहुत क्रोधित हो गया And he was determined to kill his brother Jacob. और फिर अपना भाई याकूब को वो मारना चाहता था। And Esau tells in Genesis 27 verse 36, उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय और 36 वचन में ईशाऊ ने बोलता है, and he has supplanted me these 2 times. He took away my birthright, and now look, he has taken away my blessing. उसने कहा क्या उसका नाम याकूब 36. 36 वचन में बोलते हैं, याकूब यथार्थ नहीं रखा गया, उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरा पहलौठा का अधिकार तो उसने ले ही लिया था और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। If you read verse 41, ये हम 41 वचन में पढ़ेंगे। so Esau hated Jacob because of the blessings with which his father blessed him, and Esau said in his heart, I will kill my brother Jacob. एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। And their mother Rebekah learned this. और उसकी माँ जो रिबका ने इन बातों को सुनी है So she went to Isaac और वो इसहाक के पास गई and asked her to send Jacob away to Padan Aram, where her brother Laban lived. और फिर याकूब को और उस जगह पे जो उसका भाई था लाबान पद्दनाराम में रहता, वहां भेजने के लिए इसहाक से बोल रही थी। So while Jacob was running away, जिस समय याकूब ने भाग रहा था on the way God has given him an incredible vision. और मार्ग में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया And it was the vision of the ladder, as we read in Genesis 28:12. और उत्पत्ति की किताब 28-12 वचन में जैसा हम पढ़ते हैं, उस दर्शन में उसने एक सीढ़ी को दिखाया। I want you to note 28:13. और 28 और 23 वचन पर थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। And here we read यहाँ लिखा है 28:13, 13 वचन. 28 और उसका 13 वचन। Behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord of Abraham your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and your descendants. और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। Here the Lord is mentioning the names of Abraham and Isaac. यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक के नाम को लेता है। It may look casual for us, but this is having a deeper meaning. यहाँ पर हम देखने के लिए सादा सीधा लगता है, लेकिन बहुत गहराई का अर्थ इसमें रखा हुआ है। God will not utter any word without a purpose. परमेश्वर ने बिना मकसद के एक बात भी वो नहीं बोलेगा। So with this promise, the Lord brought Jacob into the covenant blessing of his grandfather Abraham and his father Isaac. और ये वायदा करने के बाद परमेश्वर ने याकूब के अपना दादा जो अब्राहम और इसहाक जो उसका पिता था, उससे जो उसने वाचा बांधा है और उसमें उसको लेकर आता है। Lord was telling to Jacob परमेश्वर ने याकूब से कहता है, that I have accepted you as the firstborn seed of Isaac now. अभी मैं इसहाक का जैसा मैं वो जो पहलौटा है उसी प्रकार से मैं तेरा स्वीकार कर, And you have the birthright. और तेरा पहलौटा का ये हक तुझे है। I am going to bestow on you the covenant blessings of your fathers. अब वो तेरा पिता के साथ जो वाचा बांधा हुआ आशीष है मैं तुझे दूंगा। After this, और इसके बाद God adds the wonderful promises of our verse for our meditation today. अब परमेश्वर ने जैसे कि आज के दिन के अपने मनन करते हैं, इस वचन में जैसा लिखा है, और बहुतायत की आशीष को वो देता है। So this raises a very logical question in our minds. अब यहाँ पर हमारे मन में एक ऐसा प्रश्न होता है, That is, ये क्या बात है? what good is there in Jacob for God to bless him so much? परमेश्वर ने याकूब को आशीष करने के लिए क्या भले काम याकूब में दिखाई देते हैं? Till now, we can't find any faith in him. अभी तक हम उसके जीवन में कम विश्वास भी नहीं दिखता There is हमको। no goodness or grace in Jacob. याकूब के जीवन में कोई भलाई काम नहीं है। How could he become possibly the covenant patriarch? कैसे वो जो वाचा बांधा है अपने पूर्वजन के, उसके आशीष के भागीदार बनता है? We read in Romans 9:13, रोमियो की पत्री 9 और उसके 13 वचन में लिखा है, Jacob have I loved, Esau I have hated. याकूब से मैंने प्रेम किया हूँ और ईसाऊ को मैंने ठुकराया हूँ। What did the Lord see in this man? तो परमेश्वर ने ये व्यक्ति के जीवन में क्या देखा है? Is it right to bless a person
who have stolen Esau's blessings? ईसाव का जो पहलौठा का अधिकार को चुरा लिया था, ऐसे व्यक्ति को आशीष देना क्या ये ठीक है? Is it right to bless a person who is running away because of the fear of death? एक व्यक्ति जो डर के वो मौत के डर से वो भाग रहा था, ऐसे व्यक्ति को आशीष देना क्या ठीक है? The answer can be, तो इसका जवाब ऐसा हो सकता है, God saw something in Jacob's heart that brought forth his great love and a desire to bless him. परमेश्वर ने याकूब के हृदय में एक ऐसी इच्छा को देखा है और उसी वजह से, उसी कारण से परमेश्वर ने उसको आशीष देना चाहता था। At the time of delivery, जब वो उसका जब वो बच्चे जनती थे ना, उस समय में so when Esau came out of Rebekah's womb first, जब ईसाव ने पहले रिबका के गर्भ से बाहर निकला था, Jacob grabbed Esau's heel. याकूब ने ईसाव के पैर को पकड़ लिया था। It looks as if, ये ऐसा लगता है, no, you don't go first. I got the birthright. I must have the birthright. The birthright is mine. और तुम बाहर नहीं जाना, मैं पहले जाऊं, क्योंकि मैं पहलौठा का अधिकार मैं हूं, मैं पहले जाऊंगा, ऐसा बोल रहा था। God honored that. परमेश्वर ने और उस काम को देखा है और उसका आदर दिया है। And certainly God to call off this into account before blessing Jacob. परमेश्वर ने याकूब को आशीष देने से पहले इस बातों का ध्यान दिया है। God saw beyond his flesh and into something within his heart. परमेश्वर ने उसके शरीर से बढ़कर उसके हृदय में कुछ बातों को देखा है। That is a broken and contrite spirit. वो एक टूटा हुआ मन उसका आत्मा को देखा This है। is exactly what God is looking for in us. ये परमेश्वर ने ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन की ओर देख रहा है। He looks for a broken and contrite heart that he can work on. और जो हमारे जीवन में काम करने के लिए एक टूटा हुआ मन को वो खोज में है। He can't do anything with an Esau type who takes the things of God granted and weeps phony tears of repentance. ईसाव जैसा व्यक्ति उसके जीवन में चुप ऐसे ही वो रोने लगता है, जो गलत काम करता है और फिर रोता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसा मन जिसका है, उसको वो आशीष नहीं देता है। Esau was worldly and his heart was hard. ईसाव जो संसारिक था, उसका मन भी वो संसार का ही मन था। Some of the Christians are like that even today. और कुछ मसीह लोग आज के दिन ऐसे ही है। They are using their Christianity and God-given rights to fulfill their carnal desires. मसीही जीवन जो परमेश्वर ने उनको जो अधिकार दिया है, इसका वो गलत इस्तेमाल करते, अपने स्वयं के लिए वो इस्तेमाल। They want to enjoy the temporal pleasures of this world. और इस संसार के कुछ समय के लिए रहने वाली और सुख को वो लोग पाना चाहते। They are like Esau. वो सब ईसाव जैसे हैं। Jacob was aware that the birthright held great spiritual significance and meaning. याकूब को ये बात की जानकारी थी, जो पहलौठा का अधिकारी है, ये तो बड़ी आशीष का काम है ये। But Esau was a carnal man. लेकिन ईसाव तो वो शारीरिक व्यक्ति था। Yeah, in his marriage also he was not following God's principles. और उसके विवाह के समय भी वो परमेश्वर का दिया हुआ नियम का पालन नहीं किया। He had married 2 Canaanite wives. और 2 जो कनान की रहने वाली स्त्रियों को उसने विवाह किया है। So today the Lord has given us wonderful New Testament promises. आज परमेश्वर ने नए नियम के एक अद्भुत वायदा किया है। They are similar to the promises of Genesis 28:15. वो बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे उत्पत्ति 28:15 वचन में लिखा है। God fulfills these promises in the lives of people like Jacob. परमेश्वर ने याकूब जैसे व्यक्ति के जीवन में इसको पूरा करेगा। Yeah, people who are willing to recognize their inconsistencies and weaknesses. जो लोग अपनी कमजोरियों के बारे में वो जानकारी रहती है, उसको वो जानते हैं। And those people who are ready to change. जो लोग वो बदलना चाहते हैं। And the people who are ready to be molded by the hand of God. और परमेश्वर के हाथ में वो लोग ठीक ऐसा मोड़ना चाहते हैं। Something in him was always breaking and yielding. और कुछ उसके जीवन में हमेशा ये बात को हम देखते हैं, कुछ टूटा हुआ मन है। Let us also have this contrite heart. हम भी इस प्रकार का टूटा हुआ मन को हम पाना Yeah, चाहिए। be willing to be molded by God. परमेश्वर के द्वारा सुधार पाने में हम इच्छा रखना है। And his loving hands, they will shape us into the form which he has planned if we yield. यदि हम उसके अधीन में जाएंगे, जो उसका प्रेमी हाथ है, उस हाथ से वो हमको आशीष देगा। Don't continue as a supplanter, but hold fast the things of the divine value. आप ऐसे धोखा देते नहीं रहना है, लेकिन जो परमेश्वर का जो बातें हैं आप उसको अपनाना है। Don't be like Esau. ईसाव जैसा आप नहीं रहना है। Always he used the God-given privileges for fulfilling his fleshly and worldly desires. जो कुछ परमेश्वर ने उसको दिया सौभाग्य था, उसको ईसाव ने अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए और उसका उपयोग करता। Yeah, he had least regard for the spiritual things. आत्मिक विषयों के बारे में वो उस मन नहीं लगाता था। May God help us to be
heavenly minded during the earthly pilgrimage. जिस प्रकार हम इस संसार में यात्री बन के रहते हैं, तो हम जो जैसे स्वर्गीय व्यक्ति रहता है उस मन को हम लेकर चलेंगे। Our life is short हमारा जीवन बहुत छोटा है and his coming is nigh. और वो और जल्दी आने वाला है। So this little period of our pilgrimage, let us invest for the eternal things and eternal benefits. और यात्रा के जीवन में जो छोटा सा समय है, छोटा सा जीवन है, वो हमेशा वो सनातन काल के विषयों के लिए हम उस समय का हम उपयोग करेंगे। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष May God help you throughout this day. दे। परमेश्वर आज दिन भर आपकी सहायता करे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, though Jacob is a mischievous man, thou hast loved him. याकूब ऐसा धोखा देता हुआ था, लेकिन परमेश्वर आपने उससे प्रेम किया। O Lord, you have seen a desire in him, O Lord, to be the firstborn. और आपने उसके जीवन में ऐसी इच्छा को देखा है कि वो पहलौटा बनने की इच्छा रखता था। Lord, you have seen a contrite and broken heart. और उसके जीवन में प्रभु आपने जो टूटा हुआ मन को देखा है। O Lord, thou hast not despised him. और प्रभु आपने उसको इनकार नहीं किया। O Lord, Esau is not like that. ईशा ऐसा नहीं था। He gave importance to the physical things than the spiritual things. वो आत्मिक विषयों से भौतिक विषयों को बहुत महत्व देता था। He gave light value to the birthright, which is, O Lord, given by thee. But he has taken, O Lord, for that food he has sold it. वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ जो पहलौटा का अधिकार है, और उसको वो कम जानता था, और प्रभु कुछ एक वक्त की रोटी के लिए उसको बेच His दिया। priorities are different. और उसके जीवन में ऐसे बातों की महत्वता नहीं देता था। And, O Lord, he always wanted to see the earthly things and temporal things. और हमेशा वो संसारिक विषयों को और प्रभु जो कुछ समय थोड़ी समय के लिए रहने वाले उस पर वो ध्यान देता था। Help us to have a contrite heart. और प्रभु ऐसा टूटा हुआ मन रखने में सहायता Guide कीजिए। us throughout this day. और दिन भर प्रभु आप हमारे अगुवाई In करें। Jesus' precious name we pray. और यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते हैं। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।